Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. In this video, we are going to understand the concept of Freud's psychodynamic approach given by Sigmund Freud, physician and founder of psychoanalysis. The mind is a complex energy system where the most powerful forces, repressed thoughts and instincts reside below the surface of awareness. Psychodynamic approach, the study of the psychological forces that underlie human behavior, feelings and emotion and how they might relate to early experiences. So basically फ्रॉइड जो है वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कोई एक्सीडेंटल नहीं है, इट इज ड्रिवन बाय हिडन फोर्सेस इनसाइड द माइंड. कभी कभार जो है कोई पर्सन जो है या कोई भी बाय मिस्टेक कुछ भी बोल देता है तो लेटर वो सोचता है मैंने ऐसा क्यों बोला, तो फ्रॉइड इसको स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं. बेसिकली उसको पैराप्रैक्सिस बोलते हैं, वो पैराप्रैक्सिस जिसको फ्रॉइडियन स्लिप, ही गिवन द टर्मिनोलॉजी फ्रॉइडियन स्लिप. सो व्हाट इफ योर बिहेवियर इज कंट्रोल्ड नॉट बाय व्हाट यू थिंक बट बाय व्हाट यू डोंट नो. Sigmund Freud believed that our personality is shaped by unconscious thoughts, childhood experiences and hidden desire. This is known as psychodynamic approach. Freud believed कि unconscious mind जो है वो हम देख नहीं सकते, so it cannot be seen directly. He used certain tools or technique to bring that hidden thoughts, desire and conflict to the surface. उसके लिए जो टूल किट है अनकॉन्शियस की, पहला है फ्री एसोसिएशन, द टॉकिंग क्योर, इसको हम टॉकिंग थेरेपी भी बोलते हैं. जो कुछ भी दिल के अंदर है, मन के अंदर है, उसको बाहर निकालना. तो पेशेंट शेयर्स ऑल फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज ओपनली रिगार्डलेस ऑफ कोहेरेंस. द गोल इज टू बाईपास द इंटरनल सेंसर, जो भी अंदर है उसको बाहर निकालना. इट्स अ टॉकिंग थेरेपी बेसिकली. सो फ्री एसोसिएशन क्या होता है कि पर्सन को जो है कुछ भी बोलने के लिए कहा जाए, जो भी उसके माइंड में आ रहा है, बिना किसी फिल्टर के, विदाउट फिल्टरिंग, विदाउट जजिंग, विदाउट स्टॉपिंग. फॉर एग्जाम्पल टीचर ने एक बच्चे को बोला कि तुम जो भी आ रहा है मन में, यू कैन से वर्ड दैट कम्स टू माइंड व्हेन हियरिंग द वर्ड फादर. फादर सुनते ही जो भी तुम्हारे माइंड में वर्ड्स आते हैं वो बोलो. तो स्टूडेंट सेज स्ट्रिक्ट, एंगर, साइलेंस, फियर. सो स्टूडेंट ने प्लान नहीं किया था, बट ही रिवील्स द हिडन इमोशंस एंड अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स. So this is known as free association. Second is analysis of error. Examining slip of tongue, Freudian slip or memory lapses to reveal the internal functioning of the mind. So analysis of error, this is known as analysis of slip of tongue. That is Freudian slip. इसी को पैराप्रैक्सिस बोलते हैं. When we say something by mistake, for example, tomorrow is a holiday, sorry, I mean a working day, टीचर ने बोला for example, तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉइड इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि जो ये मिस्टेक है ये रिवील करती है अनकॉन्शियस डिजायर को, अनकॉन्शियस डिजायर एंड इमोशनल कनेक्शन. कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तभी जो है बाय मिस्टेकनली निकला है फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड. सो अ पर्सन रिपीटेडली फॉरगेट टू रिप्लाई टू वन स्पेसिफिक फ्रेंड. किसी एक पर्सन को वो जानबूझ के जो है वो नहीं कर रहा है या अननोइंगली वो नहीं उसको रिप्लाई कर रहा है, तो फ्रॉइड उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये अनकॉन्शियस अवॉइडेंस है और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद दैट पर्सन जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में है. And then third is dream analysis. इसको considered the royal road to the unconscious. So dream analysis को जो है royal road भी बोलते हैं. Interpreting the symbolic content of dreams to access repressed wishes. So dream analysis basically it is for example I reach exam hall late and the question paper is blurred and cannot write anything. So Freud interpret this as a hidden fear of failure. This is hidden fear of failure.
anxiety related to performance and expectation. The goal to bring repressed unconscious thoughts to consciousness, fostering self-awareness and helping individual live in an integrated manner. So to bring that unconscious thought to conscious one, fostering self-awareness and helping individual to live in an integrated manner, these are the toolkit used by Freud. The topography of the mind, the iceberg model. Iceberg model, this is basically the iceberg model जो हमें ये दिख रहा है, ये जो है ये consciousness है, conscious mind, and pre-conscious is lower and deep lower is unconscious. Conscious is awareness, current awareness, thoughts, action and feeling. This conscious is basically what we know now, जो हमें अभी पता है. जैसे मुझे भूख लग रही है, आई एम हंग्री, सो आई नीड फूड. दिस इज इन कॉन्शियस माइंड. बिफोर एग्जाम आई एम नर्वस, सो दिस इज ऑल्सो इन कॉन्शियस माइंड. मुझे पता है कि एग्जाम से पहले मैं नर्वस होना है मेरे को. ठीक है. सेकेंड वन इज प्री कॉन्शियस, एक्सेसिबल मेमोरी, मेंटल एक्टिविटी नॉट करेंटली इन फोकस बट कैन बी रेडिली ब्रॉट टू अवेयरनेस. ये हम एक्सेस कर सकते हैं, ये मेंटल एक्टिविटी है, नोट अभी जो है फोकस नहीं कर रहे हैं बट थोड़े एफर्ट से हम इसको जो है ला सकते हैं. सो दिस इज प्री कॉन्शियस माइंड या फिर सब कॉन्शियस उसको बोलते हैं. बेसिकली फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कैन रिकॉल, दिस इज व्हाट वी कैन रिकॉल. एग्जाम्पल, यू आर नॉट थिंकिंग of your mobile number but you can recall it when asked. ठीक है. Third one is unconscious, the reservoir, deeply repressed, emotionally charged material, instinctive drives and sexual desire that cannot be expressed openly. So this is unconscious, is what is hidden but powerful. These are the repressed desire, painful memories, fear and unacceptable wishes that are not easily accessible. So for example, a people become angry at small issues but the real cause is repressed frustration. So real cause is repressed frustration. This is in unconscious mind. The structural triad, id, ego and superego. Id, the brat. This is present at birth, entirely unconscious, sources of all psychic energy. सब चीज का जो है यही एक सोर्स है, लिबिडो. ड्रिवन बाय प्लेजर प्रिंसिपल. इट जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है. सो ये आपको याद रखना है, इड प्लेजर, ईगो रियलिटी, सुपर ईगो मॉरल. सो इट इज बेसिकली इट इज अ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत चाहिए, अभी के अभी चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट आइसक्रीम नाउ. ठीक है, मुझे चाहिए अभी आइसक्रीम चाहिए. सो इट इज इम्पल्सिव, चाइल्ड लाइक. Childlike. Then ego develops around age 3, operates in all level of consciousness. This is in, you can say, unconscious, and this develop around 3 and all level of consciousness. Driven by reality principle, satisfies need in socially acceptable ways, patient and reasonable. ठीक है. ये बैलेंस करता है. दिस इज बेसिकली बैलेंस करता है इन दोनों के बीच, इड एंड सुपर ईगो के बीच में. दिस बैलेंस डिजायर एंड रियलिटी, बैलेंस डिजायर एंड रियलिटी. डिसीजन मेकर, एग्जाम्पल, कोई अगर मोबाइल फोन यूज कर रहा है, ठीक है, तो इड बोलेगा कि जो है मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए.
ठीक है, पढ़ाई बहुत बोरिंग है, मुझे मोबाइल स्क्रॉल करना है, पर ईगो बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं 30 मिनट्स जो है वो पढ़ाई कर लेता हूँ और 10 मिनट स्क्रॉलिंग कर लूँगा, मोबाइल चला लूँगा। बस सुपर ईगो क्या है, वो बोलेगा कि मुझे जो है ये इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है मोबाइल चलाना, मुझको स्टडी ही करना है। सो दिस act as a moral principle. Emerges around age 5, phallic stage, internalized moral standard, driven by morality, strives for perfection, controlling the id through guilt and pride. So ये control करता है guilt and pride को, ठीक है, control basically this is the moral principle. Like for example, ये बोलेगा कि eating ice cream is wrong, you should not eat it at all, so be disciplined. Inside the superego, the moral compass. The conscience, ये आपको गिल्ट में डाल देगा, ठीक है। द ईगो आइडियल, ये आपको प्राइड में डालेगा। मेक यू फील गिल्टी फॉर डूइंग रॉन्ग, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट बैड बिहेवियर फॉरबिडन बाय पेरेंट्स एंड सोसाइटी, punishes the ego with feeling of guilt, remorse and fear of consequences, ठीक है। ईगो आइडियल ये आपको stores rules and standard for good behaviors. The ego aspires to reward compliance with feeling of pride and self-worth. Function, the super ego strives for perfection, not just reality. It seeks to control the id by internalizing authority. तो सुपर ईगो बेसिकली जो है ये परफेक्शन के लिए काम करता है, ठीक है, नॉट फॉर रियलिटी। ये कंट्रोल करता है इड को, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की, तुरंत के तुरंत चाहिए, बाय इंटरनलाइजिंग अथॉरिटी। द सिग्नल ऑफ डेंजर, 3 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी की बात करते हैं फ्रॉइड कहते हैं एंग्जाइटी कोई वीकनेस नहीं है, ये माइंड का अलार्म सिस्टम है, माइंड अलार्म सिस्टम। सो ही टॉक्स ऑफ मॉरल एंग्जाइटी, neurotic anxiety and realistic anxiety. So anxiety is a warning signal to the ego that something is wrong. ego का ये warning signal है कि कुछ तो गलत हो रहा है। So realistic anxiety, fear of real danger in the environment, example fire, wall, self preservation. बेसिकली अगर कोई डॉग जो है वो बाग कर रहा है तो उसकी बाग से जो है डरना कि वो उसे काट लेगा, या कोई भी गाड़ी जो है स्पीड में बहुत तेजी से आ रही है तो उससे नर्वस हो जाना। सो दिस इज द रियलिस्टिक एंग्जाइटी की एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो हमें जो है आ रही है। एंड मोरल एंग्जाइटी, दिस इज लीडिंग फ्रॉम द सुपर ईगो, मोरल की क्या गलत है क्या सही है। सो इंटरनल थ्रेट है द फियर ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम द कॉन्साइंस, जो हमारा गिल्ट में डाल देता है हमें। अकर व्हेन द इड स्ट्राइव टुवर्ड इमोरल थॉट रिजल्टिंग इन शेम एंड गिल्ट। सो दिस इज द फियर ऑफ सुपर ईगो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो, फीलिंग एंग्शियस आफ्टर चीटिंग करने के बाद जो है वो वाली एंग्जाइटी। देन न्यूरोटिक एंग्जाइटी, इट्स अ इंटरनल, दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल थ्रेट, द फियर दैट ईगो विल लूज कंट्रोल ओवर द इड इंस्टिंक्ट leading to impulsive behavior and punishment. ये id की थ्रो से है। Psychosexual development, the roadmap to personality. Personality is established during early developmental stage. The 5-year rule core aspects are set by age 5. Basically, personality foundation is formed by the age of 5. इसीलिए ये लिखा है oral, anal, phallic, latency, genital. These are the stages given by Freud of psychosexual development. ये fixation की बात करते हैं। Mechanism, libido focuses on different erogenous zone at each level. Fixation, if you need are undermet or overmet. अगर आपकी जो ज़रूरत है वो या तो कम
हो रही है पूरी, या तो बहुत ज़्यादा पूरी हो रही है, तो द पर्सनैलिटी गेट स्टक, उन दोनों के बीच में जो है वो रुक जाती है एट स्टेज, हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन अडल्ट बिहेवियर, इसी का जो प्रभाव है वो अडल्ट बिहेवियर पे होता है. सो दिस इज फिक्सेशन, बेसिकली अनरिजॉल्व्ड, दिस इज अनरिजॉल्व्ड psychosexual conflict influencing adult behavior. So स्टेज 1, हम 1 बाय 1 सब स्टेज के बारे में पढ़ेंगे. स्टेज 1 द ओरल स्टेज, ये बर्थ से 1 ईयर एज तक होती है. सिचुएशन बेसिकली बर्थ है तो ये छोटा बच्चा है. प्लेजर सोर्स इसका क्या है, फीडिंग. इसको किस चीज़ से मजा आएगा, खाना खाने से, दांत काटने से, थम सकिंग से, बैबलिंग से, बोलने से. तो इसका प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वीनिंग, द ट्रांजिशन अवे फ्रॉम डिपेंडेंसी, मतलब मम्मी से जब ये दूर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर फूड, ठीक है, फीडिंग परस्पेक्टिव से, तो इसका यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट अब क्रिएट होगा. सो द कॉन्सेज इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अंडरफेड, फोर्सफुली फीडिंग या ओवरफेड. सो ओरल पैसिव एंड ओरल अग्रेसिव. ओरल पैसिव क्या होगा, ट्रस्टिंग, डिपेंडेंट, सीकिंग, एंग्जाइटी, बिलीव थ्रू ओरल हैबिट. एंड ओरल अग्रेसिव क्या लीड करेगा, डोमिनेटिंग, अग्रेसिवनेस एंड साइनिकल. सो बेसिकली ओरल इज डिपेंडेंसी versus frustration. Over passive is basically the over gratification leading to dependency, and over aggressiveness is frustration leading to hostility. Next stage is anal stage, 1 to 3 years. Basically ये situation टॉयलेट ट्रेनिंग की है कि बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल पे फोकस होता है. बेसिकली इनका कॉन्फ्लिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग. Significance, the first time the child must control bodily function to meet societal demand. इसमें id versus reality का जो है confusion है. The consequences, training style में too harsh, too strict, तो anal retentive होगा बच्चा अगर, और too lenient, lax, उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो वो anal expulsive होगा. बेसिकली एनल रिटेंटिव में जो है वो ऑब्सेसिवली टाइडी, रिजिड, मीन, स्टबन, फोकस ऑन कंट्रोल. एंड एक्सपल्सिव में मेसी, वेस्टफुल, डिस्ट्रक्टिव, डिसऑर्गेनाइज्ड, फोकस ऑन रिलीज. सो दिस इज द एनल स्टेज जहाँ बेसिकली टॉयलेट ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है. थर्ड स्टेज इज फैलिक स्टेज. इट इज स्टेज फ्रॉम द ईयर 3 to 6 ईयर. फोकस होता है बेसिकली जेनाइटल पे. डिस्कवरी ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. ये टर्मिनोलॉजीज है, ये बहुत ज़्यादा जो है हाईली क्रिटिसाइज्ड आज के टाइम पे करते हैं इस स्टेज को. बट हम इसको जो है फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी में पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, बेसिकली दिस इज यू कैन से इमोशनल अटैचमेंट टू मदर, उसको हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. और ये इमोशनल अटैचमेंट टू फादर, गर्ल्स को फादर से एंड बॉयज को मदर से, सो नोन एज ऑडिपस कॉम्प्लेक्स to mother. And Electra is attachment, emotional attachment to father is Electra complex. This is the family triangle, mother, father, child, desire, their desire and rivalry. So castration anxiety is basically the fear punishment from father. fear इस चीज का कि punishment from father मिलेगा. Note, Karen Horney critique this concept proposing warm why instead इसके यूज करने के बजाय इन्होंने ये यूज किया. So resolution identification, the child resolve the anxiety by identifying with the same sex parent leading to the formation of superego. So this stage is highly criticized today. Stage 4 is latency, 7 year to puberty. Libido is a psychic energy, is dormant. Dormant basically you can say quite hidden and redirected. Quite hidden and redirected.
इसमें क्या होता है कि एनर्जी सबलाइम हो जाती है सोशल स्किल्स में, स्कूल्स में, स्पोर्ट्स में एंड अचीवमेंट में। सो बच्चे जो है इनमें ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। स्टेज 5 इज जेनाइटल puberty to death, sexual reawakening, the focus shift to partner, goal to love and to work, energy is directed toward heterosexual pleasure and socially mature relationship, as you can see from the photographs। साइकिक एनर्जी जिसको हम लिबिडो भी बोलते हैं, ठीक है, ये मेंटल एनर्जी है बेसिकली। द फ्यूल ऑफ पर्सनालिटी, द इंस्टिंक्ट क्या है, इरोज एंड थेनाटोज। इरोज मतलब लाइफ जीने की इच्छा जो है, लाइफ इंस्टिंक्ट है, और थानाटोज इज डेथ इंस्टिंक्ट। सो लाइफ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, प्लेजर, ये सारी चीज़ चाहिए जीने के लिए। पर जो गुस्सा है ये क्या है, अग्रेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। द डायनेमिक ऑफ एनर्जी, कैथिक्सिस, इन्वेस्टिंग मेंटल एनर्जी इन पर्सन, आइडिया और ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली इमोशनल अटैचमेंट टू पेरेंट, एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो दिस इज द कैथिक्सिस। एंटी-कैथिक्सिस is basically energy used by ego to control, block or suppress unacceptable impulses. It is linked with the defense mechanism. ये जो है ये defense mechanism से link है। For example कि wanting to quit studies but controlling urges. Dream analysis, wish fulfillment, manifest content, the disguise, the actual image and story remembered upon waking. The latent content is truth, the hidden symbolic meaning representing repressed wishes. So this is the dream analysis, basically जो manifest किया है, और latent reality क्या है, truth क्या है, dream ये है, ठीक है, कि हवाओं में उड़ चलूँ। Dream transform unconscious desire into less threatening form to reduce ego anxiety, but basically the truth is this. समरी ऑफ द कैरेक्टर फिक्सेशन, स्टेज की हमने बात की है, ऑरल, एनल, फैलिक, जेनाइटल। इनके कॉज क्या है, फोर्सफुल फीडिंग, ओवर फीडिंग, हार्श ट्रेनिंग, लैक्स ट्रेनिंग, एबनॉर्मल फैमिली डायनेमिक, हेल्थी डेवलपमेंट। आउटकम क्या है, पैसिव ट्रस्टिंग, अग्रेसिव डोमिनेटिंग, रिटेंटिव ऑब्सेसिव, एक्सपल्सिव, मेसी, वैनिटी, इंफीरियोरिटी इन वाई। दिस इज फैलिक स्टेज। जेनाइटल इज वेल एडजस्टेड, एबल टू लव एंड वर्क। सो इसमें ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल 5 स्टेज की हमने बात करी है। 1 2 3 4 5 हमने बात की है। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड की, इड, ईगो, सुपर ईगो की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉइड साइकोडायनेमिक अप्रोच। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।